مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس ذات نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہمیں اڑتے ہوئے ایک ذرے، ایک چڑیے اور ایک پرندے کے مانند نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پہ لانے کے لیے، ہم تمام لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے وقتاً فوقتاً نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا۔ جو ذات ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس رب کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، جو ذات علی کل شیء قدیر ہے، بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں۔ جملہ کرام تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً نبیوں کے آخری نبی، نبیوں کی آخری کڑی، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، شافع محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، برادران اسلام، حاضرین جمعہ، میرے پیارے بھائیوں اور ساتھیوں، آج کے خطبہ جمعے کا موضوع اسلامی بھائی چارہ۔ حاضرین جمعہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے ساتھ الفت اور محبت رکھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے تمام مومنوں کو بھائی بھائی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مؤمنین، سارے مؤمن لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت والجلال بیان فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ مؤمن مرد اور مؤمنہ عورتیں باہم آپس میں ایک دوسرے کا معاون، ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں۔ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور شر سے، برائی سے، خطا سے، گناہوں سے منع کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے اور اس کے برکتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ حاضرین، اس آیت کریمہ میں مؤمن مرد کو اور مؤمنہ عورتوں کو باہم ایک دوسرے کا معاون، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا قرار دیا گیا ہے، اور وہ اپنے اسی تعلق کی بنا پر ایک دوسرے کو اچھائی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو لوگ ان مومن بھائیوں میں مالدار ہوتے ہیں،
दौलत और ثروت वाले होते हैं वह अपने गरीब भाइयों को सदक़ात और ज़कात वगैरह दे करके उनको अपनी खुशियों में शरीक करते हैं, अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। और उनकी इज्तिमाई और बाहिमी ज़िंदगी का एक अहम शिआर, एक अहम तरीक़ा ये है कि वह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, उसकी इताअत और फरमाबरदारी करते हैं। वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर इकट्ठा होते हैं और उसी के हुक्म पर जुदा जुदा हो जाते हैं मेरे भाइयों। और उनकी ज़िंदगी का एक अहम शिआर ये भी है कि वह रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले और उनकी पैरवी करने वाले तमाम मुसलमानों से उल्फत और मोहब्बत करते हैं। और जो लोग ये तर्ज़ अमल अख्तियार करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, जो लोग इन आमाल पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को रातों दिन गुजार देते हैं, यकीनन वह लोग ऐसे हैं जो हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों के और उसके बरकतों के मुस्तहिक होते हैं। मेरे भाइयों, एक हदीस में हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम मुमिनों को, सारे मुसलमान भाइयों को एक जिस्म की मानिंद करार देते हुए इरशाद फरमाया है कि मसलुल मुमिनीन फ़ी तवाद्दीहिम व तराहुमिहिम व तआतुफ़िहिम मसलुल जसदिल वाहिद, कि मोमिनों की मिसाल आपस में तो ये है कि मोमिनों की मिसाल तो ये है कि वो एक दूसरे पर तरस करने में, एक दूसरे पर शफ़क़त करने में, एक दूसरे पर रहम खाने में कि एक जिस्म के मानिंद है कि जब जिस्म का एक अज़्व, जिस्म का एक हिस्सा बीमार होता है तो उसके साथ साथ पूरा जिस्म तड़प उठता है। मेरे भाइयों, इस्लामी भाईचारा अपने समाज के अंदर, इस्लामी भाईचारे के अंदर रहते हुए ज़िंदगी गुजारना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता करदा एक बड़ी अजीम नेमत है। और इस नेमत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर ख़ास तौर पे ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला सफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार। कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को यानी कुरान मुक़द्दस को मजबूती के साथ थाम लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और तुम अपने ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियामत को याद करो। इज़ कुंतुम आदाअन, जबकि तुम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, एक दूसरे की गर्दनें काटा करते थे, एक दूसरे को कत्ल कर दिया करते थे और एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे क़ल्ब में उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम उसके फज़्ल व करम से भाई भाई बन गए। और मेरे भाइयों, याद करो उस वक्त को जब तुम जहन्नम के गड्ढे के किनारे पहुंच चुके थे। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें उससे बचा लिया। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीआ। हाज़रीन, यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ख़िताब कर रहा है कि ए नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ही की वो ज़ात है जिसने उनके दिलों में उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा दी। अगर आप रुए ज़मीन पर मौजूद तमाम चीज़ें खर्च कर डालते, तमाम चीज़ों को आप लुटा देते, फिर भी आप उनके दिलों में उल्फत और मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा का पस मंज़र ये है कि अहद रिसालत से पहले ज़माने जाहिलियत में, दौरे जाहिलियत में और क़ब्ल अज़ इस्लाम की तारीख़ का मुताला करने से ये बात हकीकत और ये बात अज़हर मिन अश-शम्स होकर सामने आ जाती है कि वह दौर और वह ज़माना जो बादे सुमूम और ज़हर हिलाहल का दौर था, उस दौर में इंसानियत खून की आंसू बहा रही थी। हमेशा किसी चीज़ का खदशा, किसी चीज़ का खौफ और किसी चीज़ का डर लगा रहता था। चैन व सुकून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही थी। मेरे भाइयों, फहाशी व उरियानियत, बेहयाई और बेपर्दगी अपनी आखिरी हद को छोड़ रही थी। इंसान इंसानियत का अमली जामा उतार कर जंगल का वहशी दरिंदा और जानवर बन चुका था। मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था।
हामला औरतों को तीर का निशाना बनाया जाता था, बेवाओं को मार दिया जाता था और इसी तरह यतीमों के माल को हड़प लिया जाता था। लेकिन मेरे भाइयों, अहदे रिसालत से पहले ज़माने जाहिलियत में इंतकाम की कारफरमाइयाँ जारी थी और इंतकाम की हिलाकत आफरीनों से न अपने महफूज थे, न पराए महफूज थे, न मर्द महफूज थे, न औरतें महफूज थी, न बच्चे महफूज थे, न बूढ़े महफूज थे। मेरे भाइयों, ये वो दौर था जहाँ ना इंसानी जान की कोई कीमत थी, ना इंसानी खून का कोई एहतराम था। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस ज़मीन पर, इस पृथ्वी और इस धरती पर इंसान आबाद नहीं थे, बल्कि इंसानी शक्ल में जंगल के वासी दरिंदे और जानवर मौजूद थे, जिनके दिल में ना दर्द था, ना दर्दमंदी का एहसास, प्यार से ना वाकिफ, मोहब्बत से ना आसना और रहमो करम के महासिन से ना बलद थे। मेरे भाइयों, एक जान के बदले दसियों बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया जाता था। कितने मासूम और बेगुनाह लोगों की गर्दनों को उनके तन से, उनके जिस्म से जुदा कर दिया जाता था। मेरे भाइयों, और बात बात पे लड़ाई हुआ करती थी, एक दूसरे की खून की नदियां बहा करती थी। मेरे भाइयों, ऐसे दौर में लेकिन जब मजहब इस्लाम आया, जब हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत से सरफराज किया गया और जब मजहब इस्लाम चारों तरफ दुनिया के चप्पे चप्पे में फैलने लगा, तो इस मजहब को कबूल करने वाले, दीन इस्लाम पर ईमान लाने वाले लोगों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा दी, जिसकी वजह से कल जो लोग बाहम दस्तो गरीबा थे अब शेरो शिकर हो गए। जो कल तक एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे अब वो दोस्त बन गए। जो कल तक एक दूसरे की जान लिया करते थे अब वो अपनी जान को दूसरों पर अपनी जान को लुटाने लगे। मेरे भाइयों, तो ये इस्लामी भाईचारा, इस्लामी और भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की तरफ से अता करदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा एक बहुत बड़ी अजीम नेमत है और ये एक एहसान है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वे हुनैन में कुछ माल गनीमत उनको हाथ लगा और हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस माल गनीमत को उन लोगों के दरमियान तकसीम किया, उन लोगों के दरमियान उस माल गनीमत को बांटा जिनको तालीफ़ क़ल्ब करना मकसूद था। लेकिन हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये बात पहुँची कि अल्लाह के रसूल, अंसार भी उनकी तरह माल गनीमत हासिल करना चाहते हैं, अंसार भी चाहते हैं कि उन लोगों की तरह हमें भी माल गनीमत हासिल हो। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़ा होते हैं, हम्दो सना के बाद मुआशरे अंसार से खिताब करते हुए कहते हैं कि या माशरल अंसार अलम अजिदकुम ज़ुल्लालन फ़हदाकुमुल्लाहु बी, क्या तुम गुमराह ना थे? क्या तुम सिराते मुस्तकीम से भटक नहीं गए थे? क्या तुम सीधे रास्ते से दूर नहीं हो गए थे? अलम अजिदकुम ज़ुल्लालन फ़हदाकुमुल्लाहु बी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें मेरे ज़रिए हिदायत दी, सिराते मुस्तकीम दिखाया। वअल्लतन फ़अग़नाकुमुल्लाहु बी, और क्या तुम तंग दस्त ना थे? फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने तुम्हें मेरे ज़रिए मालदार बना दिया। व मुतफ़र्रिक़ीन फ़जमअकुमुल्लाहु बी, और क्या तुम जुदा जुदा नहीं थे, अलग अलग नहीं थे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें मेरे ज़रिए इकट्ठा कर दिया। चुनांचा मुआशरे अंसार के लोग आपके हर सवाल के जवाब में यही कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल का एहसान बहुत बड़ा है। तो मेरे भाइयों, मुआशरे के अंदर भाई भाई बनकर अपनी ज़िंदगी को गुजारे और जब एक मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई के साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारता है तो उस पर कुछ हुकूक वारिद होते हैं। एक दूसरे के साथ हमदर्दी करना, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का हमदर्द होना चाहिए। वो इस तरह से कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की परेशानी को अपनी परेशानी जाने, उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ महसूस करे और उसकी मजबूरी को अपनी मजबूरी समझे और जहाँ तक हो सके उसका साथ दे। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मन काना माहु फ़ज़्लु ज़हरिन, कि जिसके पास इजाफ़ी सवारी हो, जिसके पास ज़ायद सवारी हो, तो वह अपनी सवारी अपने उस भाई को दे दे जिसके पास सवारी न हो। इसी तरह जिसके पास ज़्यादा सवारी, जिसके पास खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा हो तो वो खाने पीने की चीज़ें उसको दे दे जिसके पास खाने पीने की चीज़ ना हो। मेरे भाइयों, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन आपस में किस तरह एक दूसरे की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ महसूस करते थे।
किस तरीके से दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझते थे और आपस में किस तरह हमदर्दी किया करते थे, उसका अंदाज़ा आप इस वाक़े से लगा सकते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ जो हिजरत करके उनके पास तशरीफ़ लेकर के गए तो हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके दरमियान और हज़रत साद बिन रबी के दरमियान भाईचारा कायम किया। साद बिन रबी कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़, मैं अंसार में सबसे ज़्यादा मालदार आदमी हूँ, मैं अंसार में सबसे ज़्यादा दौलत और सरवत वाला आदमी हूँ, और ये बात अंसार को भी मालूम है। मैं अपने माल को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, एक हिस्सा आपके लिए, दूसरा हिस्सा मेरे लिए। मेरे पास 2 बीवियाँ हैं, आप उन दोनों को देख लीजिए और उन दोनों में से जो अच्छी लगे मैं उसको तलाक दे देता हूँ, और जब इद्दत पूरी हो जाए तो आप उससे निकाह कर लीजिएगा। चुनांचे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहते हैं कि बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिका, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अहल व आल में और आपके दौलत और सरवत में, आपकी माल व दौलत में बरकत अता फरमाए। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ घी और पनीर के मालिक हो गए। और अभी कुछ ही ज़माना गुजरा था कि हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन पर ज़र्द रंग के कुछ निशानात देखे, तो अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा कि वे अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ये क्या है। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैंने एक खजूर के घुटली के वज़न के बराबर सोना देकर एक अंसारी औरत से शादी कर ली है। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको मुबारकबाद पेश की और कहा कि तुम वलीमा करो, खा एक बकरी ही ज़बह करके। तो मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए और अंदाज़ा लगाइए कि ये उस वक्त की बात है जब एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझा करता था, उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझता था और उसकी परेशानी को अपनी परेशानी जानता था। और आज हालात बदल चुके हैं। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए कि वो भी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वो किस तरीके से आपस में ज़िंदगी को गुजारा करते थे कि अपनी दौलत और सरवत को अपने भाइयों पे लुटा दिया करते थे, अपने भाइयों पे खर्च कर दिया करते थे। जबकि आज हर शख्स अपनी ज़ात, अपने अहल व अयाल, अपने घर के बारे में सोचता है। किसी को किसी शख्स की फ़िक्र ही नहीं, हर शख्स अपनों में लगा हुआ है। और नौबत और हालात यहाँ तक जा पहुँची है कि सामान घर में पड़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन अपने किसी ज़रूरतमंद इंसान को नहीं दी जाती है। मेरे भाइयों हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कल क़यामत के रोज़ कम मुतअल्लिक़िन बिजारिही यौमल क़ियामती, कि मैंने रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि क़यामत के रोज़ कितने ऐसे पड़ोसी होंगे जो अपने पड़ोसियों से चिमटे हुए होंगे, अपने पड़ोसियों से लगे हुए होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से बारगाह इलाही में शिकायत करेंगे। शिकायत कर रहे होंगे कि इलाहुल आलमीन, ये तेरा बंदा गुनहगार है, इसने मेरे सामने अपने दरवाजे को बंद करके अपनी नेकी को रोक लिया था। यानी मेरे घर में चूल्हा नहीं जला था, इसके घर में अनाज था, मेरे घर में नहीं दिया, इसने अपनी नेकी के दरवाजे को बंद कर लिया था। तो मेरे भाइयों ज़रा सोचिए कि भाईचारे की ज़िंदगी गुजारना और आपस में एक साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कितनी बड़ी नेमत है। इसी तरह एक दूसरे का ताउन करना, एक दूसरे से ताउन करना और एक दूसरे से मदद लेना, एक दूसरे की मदद करना, जहाँ तक एक इंसान के लिए हो सके वह अपने मुसलमान भाई की मदद करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल इरशाद फरमाता है, व तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि तुम नेकी और तक़वा की बुनियाद पर एक दूसरे से ताउन करो और बुराई और जुल्म और ज़्यादती की बुनियाद पर एक दूसरे से ताउन ना करो। लिहाजा हर मोमिन बंदे के लिए, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह अपने मुसलमान भाई से ताउन ले और अपने मुसलमान भाई का ताउन करे, ख़ुद भी मदद ले और मदद करने की ज़रूरत हो तो उसकी मदद भी किया करे। क्योंकि जो शख्स इस दुनिया के अंदर किसी अपने मोमिन भाई की मदद करता है तो आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल उसकी मदद करेगा। मन नफ़्फ़स अन मुअमिनिन कुरबतन मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़स अल्लाहु अन्हु कुरबतन, कि जो शख्स इस दुनिया के अंदर अपने किसी मुसलमान भाई के साथ आसानी पैदा करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में उसके लिए आसानी पैदा फरमाएगा।
جو شخص اس دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے کی پردہ پوشی کرے گا۔ اسی طرح بندہ اللہ رب العالمین اس وقت تک اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ التقوی ہا ہنا، کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ بھائی اور بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر لان تان اور الزام تراشی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی بسر کریے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ اور صحیح سلامت رہیں۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے اور غور کیجئے کہ اس حدیث کے پیش نظر کیا ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے؟ ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے؟ کبھی نہیں۔ آج ہاتھ سے تو دور کی بات میرے بھائیوں، بلکہ زبان سے بھی کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ ہمیشہ کوئی کسی کی چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے، وہ بھی اپنے سگا بھائی یہ مر جائے اور اس کا گوشت کھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے، جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ اور صحیح سلامت رہیں۔ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائے۔ چنانچہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ من عادا مریضا نادا منادی من السماء، کہ جو شخص اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے تو آسمان سے ندا لگانے والا، آسمان سے آواز لگانے والا فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تجھے خوشحالی نصیب ہو، تو نے جنت میں ایک گھر بنا لیا۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان المسلم اذا اخاہ المسلم او زارہ، کہ بے شک جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے یا اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس لوٹنے تک جنت کے میوے میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے پیش نظر جو انسان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس کی زیارت کرتا ہے تو وہ صرف جنت کے میووں میں ہی نہیں رہتا، بلکہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دن و رات اینی ٹائم 24 گھنٹہ مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرے، صبح کے وقت اس کی زیارت کرے، تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو شخص شام کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو ہم اس کی عیادت کریں اور اس کی زیارت کریں۔ بینا بری ہم پر واجب ہے کہ ہم مسلمانوں سے آپسی تعلقات کو ختم نہ کریں اور آپسی تعلقات کے ماحول کو خوشگوار بنائے رکھیں۔ اللہ رب العزت و جلال سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو انتہائی الفت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اسلامی بھائی چارگی کی خاطر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ